in inviting our guest speaker, Dr. Tanu Jain, ma'am, to represent the topic of our webinar. But before that, I would like to give you a brief introduction of ma'am. Becoming an IAS officer after completing your BDS is not a path that students ideally take. Pursuing your BDS is a tedious affair, but to prepare for UPSC exams after completing your BDS requires a lot of determination and focus. One such IAS officer who has achieved the rare feat of clearing the UPSC Civil Services exam and completing a BDS degree is Dr. Tanu Jain. Dr. Tanu Jain's journey to prepare for the UPSC exam began after she finished her internship. She did her schooling at Cambridge School, Srinivas She then went to complete her BDS at Subharti Medical College in Meerut. She began preparing for civil services examination after finishing her degree. In 2015, she was assigned to the Armed Forces Headquarters Services after passing the civil services examination in 2014. She is currently employed as an assistant director in the DRDO, where she serves the country and its people admirably. Ma'am, you are indeed an asset to the society, and it is an absolute honor to have you here with us. I'm sure everyone is as excited to learn about your journey as I am. Thank you so much, Harshita. It's my pleasure to join you and everybody else in today's session. And I regret coming late to the session. Actually, I was doing some office work, so I had some urgent thing to complete. So that is why I couldn't join at the right time. And thank you, Darshan Pandey sir, the principal sir, and everybody else who was instrumental in arranging this session, and especially Kanishk, who persuaded me to, because he said that he will have to come for this session. And coming to the topic, civil services. Firstly, I like to correct. I'm IAS Allied Officer 2015 batch of Armed Forces Headquarters Civil Services. So I qualified in 2014 exam, and my batch is 2015. So regarding today's topic, how to manage stress. So मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ के अंदर सिर्फ एग्जाम ही नहीं, हमें वैसे भी जनरली स्ट्रेस मैनेजमेंट आना चाहिए, क्योंकि आप कुछ भी अचीव करें, आप सिविल सर्विसेज करें या नहीं करें, लेकिन अगर आप स्ट्रेस मैनेजमेंट करना जानते हैं तो आपकी लाइफ वैसे ही बहुत अच्छी हो जाती है। एम आई ऑडिबल इनफ? मेरी आवाज के अंदर कोई परेशानी तो नहीं है ना? No, ma'am, you are audible. ओके, सो कमिंग टू द टुडेज टॉपिक, बहुत सारे सिविल सर्वेंट्स जो होते हैं, सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करने वाले जो एस्पिरेंट्स होते हैं, उनकी लाइफ में मेजर स्ट्रेस जो आता है वो आता है कि कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें, कब स्टार्ट करें, किस तरीके से कोचिंग ज्वाइन करें, नहीं करें, और बहुत सारे मिथ्स एसोसिएटेड है इस एग्जाम्स के साथ। जैसे जब मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट करने के लिए सोचा था, तो somebody told me 20 घंटे पढ़ते हैं सिविल सर्वेंट्स, मतलब जो आईएएस क्लियर करते हैं, एग्जाम यूपीएससी का क्लियर करते हैं, वो कम से कम 18 से 20 घंटे पढ़ते हैं, और खाते भी नहीं हैं, दोस्त तो उनके होते ही नहीं है, और किसी भी एक्टिविटी को कोई कुछ नहीं करते, वो सिर्फ बुक्स में लगे रहते हैं और सिर्फ पढ़ाई करते हैं। सो आई एम गोइंग टू टेल यू दिस इज अ मिथ, ऐसा नहीं है। सो आई एम माई सेल्फ एन एग्जाम्पल, एंड अपार्ट फ्रॉम मी लॉट ऑफ माई फ्रेंड्स आर देयर, जिनके बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं, जो अपनी लाइफ भी जीते हैं और उन्होंने साथ साथ पढ़ाई करके अपने गोल को भी अचीव किया है। नाउ दे आर पोस्टेड इन वेरियस डिस्ट्रिक्ट्स, आई एम पोस्टेड इन MOD and currently with the Raksha Mantri office. So lot of all of us have friends, we watch series also, we go on outing also. So जो myths associated हैं, हमें उससे थोड़ा सा बाहर आना है, क्योंकि मेजर स्ट्रेस का कारण यही होता है, जब हमें लगता है कि पता नहीं कि कितना पढ़ना पड़ेगा, तो पढ़ने से ज्यादा पढ़ने की टेंशन हो जाती है बहुत बार, तो हमें उस चीज से ओवरकम करना है। तो another source of stress is relatives and pressure from families. The moment you start preparing for civil services, everybody starts calling you collector, collector साहिबा आ गई, collector साहब आ गए, है ना, इनको सीट दो, and all that stuff. So it becomes a pressure on you. तो उससे कैसे ओवरकम करें वो भी हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्टिंग, जो मुझे लगते हैं पॉइंट्स वो मैं आपको बता दूंगी, और उसके बाद आप लोग फ्रीली क्वेश्चन पूछ सकते हैं, फ्रीली,
इट्स नॉट अ कंपल्शन आप कौन से क्वेश्चंस पूछें, यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कब स्टार्ट करना चाहिए? एज अर्ली एज पॉसिबल, जितना जल्दी आप स्टार्ट कर सकें। You right now in college, so I would say that's the ideal time to start. Even if you are in first year, second year, third year, whatever year you are, you should start. कैसे start करें? Second question. You should start reading by newspaper and current affairs. आपको एक जनरल अवेयरनेस होनी चाहिए। आप अगर क्वेश्चन पेपर्स देखोगे, आप एग्जाम का पैटर्न देखोगे, चाहे वो प्रीलिम्स हो, चाहे वो मेंस हो, चाहे वो इंटरव्यू हो, यूपीएससी वांट्स समबडी हु इज अवेयर, जिसको दुनियादारी के बारे में पता हो, जिसको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो कि दुनिया कैसे चल रही है, क्या हो रहा है आज, इस कंट्री का उस कंट्री के साथ अगर इशू है तो किस कारण से है, क्या टॉपिक है इशू का, है ना। अगर हमारे डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के अंदर कोई इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, क्या चल रहा है, एक किसान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, किस कारण से, उनकी डिमांड्स क्या हैं। अच्छा, अगर उनकी डिमांड्स सही है, गलत है, आपका ओपिनियन तब बनेगा ना जब आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी न्यूज़पेपर्स के थ्रू या न्यूज़ चैनल्स के थ्रू। न्यूज़ चैनल्स आई विल नॉट से वेरी प्रोडक्टिव, क्योंकि वहाँ पे डिस्कशन एंड वो सब बहुत अजीब तरीके से करा जाता है। तो रादर यू शुड ट्राई टू रीड न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, और राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी पे डिस्कशंस आती हैं, आप वो सुन सकते हैं, है ना। AIR ऑन इंडिया जो है हमारा, उसके ऊपर भी डिस्कशंस आती हैं, यू कैन लिसन टू दैट। सो उसमें आपको एफर्ट ही नहीं करना, आपके पास स्मार्टफोन है, यू जस्ट नीड टू गो ऑन यूट्यूब और एनी अदर प्लेटफॉर्म जहाँ पे आपको राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी की डिस्कशंस मिल जाएं। आप अलग अलग टॉपिक्स पे डिस्कशंस आती हैं, आप बस उन्हें ट्यून इन करें और सुन लें। सो दिस इज लाइक कि आपका एक टॉपिक प्रिपेयर हो जाता है उससे, क्योंकि वहाँ पे बहुत मीनिंगफुल डिस्कशंस आती हैं। सिमिलरली आप अपने पेरेंट्स या जो भी लर्नड पीपल हैं आपके आसपास, उनके साथ भी आप डिस्कस कर सकते हैं। जैसे वुमेन इश्यूज हैं, जैसे कास्ट इश्यूज हैं। सो ये इन सब पे आपका ओपिनियन कैसे बनता है? जब आप डिस्कस करते हैं, जब आप लोगों को ऑब्जर्व करते हैं, सिचुएशंस को ऑब्जर्व करते हैं। सो जो किताबें हैं, ऑफ कोर्स वो किताबों वाला पार्ट भी बहुत जरूरी है, वो उस पे भी हम आएंगे कि मतलब किस तरीके से अपनी एकेडमिक लाइफ को मैनेज करना है। But apart from that, your preparation starts being aware of yourself and aware of your surroundings. So थोड़े से जागरूक हो जाए, थोड़े से aware हो जाए, this is the starting. So आप सबसे पहले ये करें। फिर तीसरा, एक लोगों के मन में डाउट बहुत ज्यादा आता है, स्ट्रेस आता है, शायद इंजीनियर्स ज्यादा क्वालिफाई करते हैं या डॉक्टर्स करते हैं, हमारा पास BA की डिग्री है, हमारे पास BCom की डिग्री है, पता नहीं हम क्वालिफाई करेंगे नहीं करेंगे। या हो सकता है डॉक्टर्स को ऐसा लगता है बहुत बार कि भाई हमारे पास तो सिर्फ मेडिकल की नॉलेज है, बाकी सारे एस्पेक्ट्स के अंदर तो हमारे पास नॉलेज ही नहीं है, क्या हम क्लियर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। सो आई से कि हर बैकग्राउंड के व्यक्ति ने यूपीएससी क्लियर किया हुआ है, एंड हर बैकग्राउंड के व्यक्ति ने लगभग हर बार टॉप भी किया हुआ है। तो आप देखेंगे, we have BAs who have done extraordinary in the UPSC, BComs, BScs, engineers of course, and doctors, CAs, we have lawyers. So every graduation subject has performed well in UPSC. So you don't have to worry कि आपका graduation subject कौन सा है कौन सा नहीं, it doesn't matter till the time you have a graduation degree with you, it's superbly fine, you can clear UPSC. Because UPSC wants a diversity in their officers. वो चाहते हैं कि अलग अलग स्ट्रीम से जो बेस्ट लोग हैं वो उनके पास आए और वो एज ऑफिसर उनकी डिस्ट्रिक्ट्स में जाके काम करें। तो आपको अपने ग्रेजुएशन सब्जेक्ट को लेके बिल्कुल स्ट्रेस नहीं करना कि मैंने तो होम साइंस से ग्रेजुएशन करी है, या फिर मैंने तो बिल्कुल बेसिक से किसी सब्जेक्ट से ग्रेजुएशन करी है। So you don't have to stress over it. It's very fine. And toppers are also there. You can see. आप उठाएं, इस सब का एनालिसिस आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएगा। सो आप उठाएं कि कौन कौन से ग्रेजुएशन सब्जेक्ट्स हैं जिन्होंने यूपीएससी क्लियर किया हुआ है। यू विल फाइंड कि BAs, BComs, एवरीबडी हैज स्कोर्ड गुड रैंक्स। उस चीज पे स्ट्रेस नहीं करना है। फिर आता है कि हमारे रिलेटिव्स को कैसे मैनेज किया जाए। पेरेंट्स का बहुत प्रेशर रहता है, पेरेंट्स कहते हैं यार सिविल सर्विसेज मत दो, बहुत साल लग जाते हैं,
या रिलेटिव्स जो होते हैं वो कहते हैं अच्छा यूपीएससी करोगे, अच्छा तुम्हारे परसेंटेज कितने आए थे कॉलेज के, स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर। तो मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज से भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। So you are a 70% student who got 70% in their 10th or 12th, or 90%, or maybe 100% nowadays. So it doesn't matter. आपके ग्रेजुएशन में कितने नंबर है, टिल द टाइम यू आर क्वालिफाइंग द मिनिमम क्वालिफिकेशन जो शायद 50% कुछ है. So till the time you are above that qualifying percentage, it's very fine. So आपको कभी ऐसा नहीं सोचना है कि अरे मैं कैसे यूपीएससी कर सकता हूँ, मैं तो सिर्फ 70% वाला बच्चा हूँ. It's not that. Absolutely. It's a different ball game. It's a different exam, different preparation. So you don't consider your merit only on the basis of your 10th, 12th number or your graduation marks. It's very fine. I have myself seen many candidates who were like 70 percentile in their 10th, 12th, very, very flamboyant, very, very extrovert personalities. And they have performed extraordinarily in their UPSC examination. So they have scored under 10, rank under 10. So I'll say ki, it doesn't matter if you are 90 percentile or 70 percentile, but only matter is if you are dedicated enough, if you are persistent enough in your efforts. And if you are, so definitely you are a UPSC material. So nobody is gonna, don't let anybody tell you that you are not. You are not a UPSC material, because it's your own, what I'll say, wisdom, which will tell you if you are or if you are not. आप अपने मन से पूछे कि क्या आपके अंदर उतनी डेडिकेशन है, और अगर है तो nobody else is a better judge than you yourself. Then coming to another topic, क्या 24 घंटे पढ़ना पड़ता है या 24 में से 18-20 घंटे पढ़ना पड़ता है? नहीं, इतना नहीं पढ़ना पड़ता, पर डेफिनेटली पढ़ना पड़ता है. आपको जितना आपने कभी भी ग्रेजुएशन में, स्कूल में, या उसके बाद आपने कोई और एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करी, आपने जितना भी पढ़ा है उससे थोड़ा ज्यादा तो पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज सिलेबस इज वास्ट. यू कैन अंडरस्टैंड. जैसे कि जो जीएस हमारा सब्जेक्ट है, जैसे सिर्फ प्रीलिम्स को ही अगर हम ले लें, सो प्रीलिम्स के अंदर यू हैव हिस्ट्री. हिस्ट्री के अंदर सिर्फ एक हिस्ट्री नहीं है, उसके अंदर कल्चर अलग है, एंशियंट हिस्ट्री अलग है, मिडीवल अलग है, मॉडर्न हिस्ट्री अलग है. सो हिस्ट्री के अंदर ही 4 पार्ट्स हैं एक तरीके से समझे. उसी तरह ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी अलग है, वर्ल्ड ज्योग्राफी अलग है, पॉलिटी है, इकोनॉमी है. इकोनॉमी के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, एग्रीकल्चर अलग है, इंडस्ट्री अलग है. सिमिलरली इट्स एनवायरमेंट. एनवायरमेंट इज अ ह्यूज सिलेबस. आपको बहुत सारी चीजों के बारे में नया नया पता चलेगा. So definitely it's a huge syllabus, so you will have to study and read. But I'll say this improves your personality. जब मैंने BDS किया था, तो आफ्टर इंटर्नशिप मुझे शायद बहुत सारी चीज़ों के बारे में पता भी नहीं था. मुझे नहीं पता था बैंक्स कैसे वर्क करते हैं, व्हाट इज क्रेडिट, एंड how these banks manage to give us loans and give us all that interest and all that stuff. किस तरीके से चीजें वर्क करती हैं, ये आपको धीरे धीरे यूपीएससी की जैसे जैसे आप जर्नी में बढ़ेंगे तो आपको समझ आती जाएंगी. बहुत सारे इश्यूज के बारे में, मतलब आपको यूपीएससी की तैयारी के दौरान ही समझ में आएगा कि अच्छा ऐसा भी होता था, अरे हमने कभी पता नहीं क्यों नहीं सोचा. मतलब इफ आई लुक एट माई सेल्फ बिफोर माई जर्नी इनटू यूपीएससी, तो अब मुझे खुद देख के लगता है कि शिट, मैं कितनी इग्नोरेंट थी, कि मेरे को कुछ पता ही नहीं था, और फिर भी मतलब मैं सरवाइव कर ही रही थी, बट स्टिल मतलब कितनी इग्नोरेंट थी उस वक्त. तो ये जो जर्नी है यूपीएससी की प्रिपरेशन की, ये आपको बहुत मेच्योर और बहुत अंदर से बहुत आपको एम्पावरिंग महसूस करवाएगी. सो यू विल बी नोइंग द लॉ. आपको कॉन्स्टिट्यूशन में क्या वैल्यूज हैं, क्या आपके पास राइट्स हैं, ड्यूटीज हैं, आपको ये सब चीजें पता चलेंगी, और जैसे जैसे आपको पता चलेंगी यू विल फील मोर एम्पावर्ड. सो ऑफ कोर्स अगर आप इसको क्लियर करते हैं एग्जाम को, तब तो आपके पास बहुत पावर आएगी ही आएगी, बिकॉज अल्टीमेटली इट्स द पावर हाउस ऑफ कंट्री, दिस एग्जाम एंड द कैंडिडेट्स. बट अगर आप नहीं भी क्लियर करते हैं, देन ऑल्सो आई विल से दिस जर्नी इज वर्थ वाइल. दिस जर्नी इज वर्थ वाइल. अगर मैं सेलेक्ट नहीं भी होती,
तब भी I wouldn't have regretted coming on the path of UPSC preparation, because I was a better person, a better I had better knowledge once I started this preparation. So ठीक है 24 घंटे नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ आपको 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, ठीक है. एंड 8 से 10 आई एम सेइंग जनरल थिंग, लाइक हो सकता है कोई स्टूडेंट 6 घंटे में ही इतने फोकस से पढ़ाई कर ले कि उसको विद इन 6 आवर्स ही और शी इज एबल टू कंप्लीट दोज कॉन्सेप्ट्स. और हो सकता है कोई 10 से ज्यादा 16 घंटे पढ़े तब भी उनको ना कर पाए. So it definitely depends on your own personal speed and accuracy and focus. But yes, 8 to 10 hours are something which is normal during preparation. Coming to books which we have to read, so there is a myth going on in UPSC preparation thing that you have to read each and every book under the sun. You know, so I have met candidates. There was a girl. She was reading some magazine, some Hindi magazine of stories. So कुछ बात हुई, मैंने उससे पूछा, मैंने कहा आप ये क्या पढ़ रहे हैं, तो उसने नहीं यूपीएससी में तो कुछ भी पूछ सकते हैं ना, ये भी पूछ सकते हैं. तो हाँ, पूछ सकते हैं, बहुत सारी चीजें पूछ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ मतलब ऐसा नहीं है कि अंडर द सन कुछ भी पूछ लेंगे ना. तो इट्स इम्पोर्टेंट दैट यू फोकस कि आपको किन किन चीजों पे ज्यादा स्ट्रेस देना है. सो देयर इज अ लिस्ट ऑफ सम स्टैंडर्ड बुक्स. हिस्ट्री के लिए you read NCERTs, Bipin Chandra, Spectrum. For polity, you read Basu and you read Lakshmikant. So there is a list of some standard books which you have to read. And apart from that, current affairs and a little bit of magazines here and there, that would do. Those magazines are concerned with UPSC preparation only. So don't mix magazines with any magazine in the world. So there is a set of what I'll say toolkit. There is a toolkit with you जिसके अंदर से आपको आपके tools मिल जाएंगे for preparation, and you have to do it from there. उसके बाद आपका wisdom है how better you apply your tools. है ना, कोई अपने tools को use करके सिर्फ table बना पाता है, कोई अपने tools को use करके एक artistic सा painting बना लेता है. So it depends on you ultimately. So there are a set of books, and if you are a serious candidate for UPSC, I'll say buy these books and start preparing. So more revision, the better outcomes you will get. So if you are you people are already studying in college, so I'll say you buy those magazines, monthly magazines, and start reading those. अगर आप हिंदू पढ़ सकते हैं या इंडियन एक्सप्रेस या टाइम्स ऑफ इंडिया, कोई सा भी जो इंग्लिश न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, आप पढ़ें. I'll say you start with Times of India. It's a little light, a little more oriented towards college life. And once you start understanding Times of India, graduate towards Indian Express, and then at the end you should graduate towards the Hindu, because Hindu is a heavy newspaper. So I have met candidates जिनको पहली बार सजेस्ट किया गया आप हिंदू पढ़ लो, तो एक महीने बाद उन्होंने कॉल करके बोला मैम ये तो हिंदू तो समझ ही नहीं आ रहा है, लिखता क्या है, मतलब इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा है. तो ऐसा भी होता है, कई बार आप इश्यूज को कनेक्ट नहीं कर पाते हैं. सो टू फॉर्म योर बेस, इट्स ऑलवेज गुड टू स्टार्ट विद अ लाइटर न्यूज़पेपर. एंड फिर एक डाउट रहता है कि हमें कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. Yes, so definitely if there is someone to help you, it is always useful, but it's your personal choice. It's always your personal choice. बहुत सारे लोगों को कोचिंग सूट करती है, बहुत सारे लोगों को नहीं करती है ना. सो यू पीपल आर ऑलरेडी इन कॉलेज, सो मुझे ऐसा लगता है कि शायद आपके पास टाइम नहीं होगा कोचिंग जाने का अभी. सो इट्स वेरी फाइन. सो आप बाद में भी कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं करी थी. मैंने अपनी जीएस की प्रिपरेशन के लिए कोई कोचिंग कभी ज्वाइन नहीं करी. सो इट्स वेरी मच पॉसिबल टू प्रिपेयर विदाउट कोचिंग. आपके पास नोट्स होने चाहिए सब, और आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए. हाउ टू मेंटेन डायरेक्शन पे कभी हम दोबारा कभी सेशन कर लेंगे, लेकिन आपकी डायरेक्शन सही होनी चाहिए कि किस तरीके से आप यूपीएससी की प्रिपरेशन के दौरान बहके नहीं, क्योंकि जो होता है ना इसमें बहक जाते हैं, क्योंकि अचानक से बहुत नॉलेज का खजाना सा आपके सामने आ जाता है, तो पढ़ते पढ़ते लोग एग्जाम ओरिएंटेशन भूल के ना फिलोसोफर बन जाते हैं. दैट हैपेंस. सो उससे थोड़ा बचना होगा.
फिर कमिंग टू टाइम मैनेजमेंट, यू पीपल आर इन कॉलेज, सो आपको ऐसा लग रहा होगा कि टाइम कहाँ से मिलेगा हमें प्रिपेयर करने का, इसका भी स्ट्रेस रहता है. सो आई से यूज योर टाइम ड्यूरिंग योर ट्रैवल और आफ्टर गोइंग बैक टू होम. तो उसमें से आप अगर 2-3 घंटे भी निकाल लेते हैं, दैट्स वेरी गुड फॉर योर प्रिपरेशन. मतलब यू विल बी ऑन अ कंफर्टेबल पोजिशन. आप ट्रैवल टाइम कैसे यूज कर सकते हैं? You can listen to debates, and debates. When I say debates, I mean to say Rajya Sabha and Lok Sabha debates, जहाँ पे there is concrete subject wise, point wise discussion. उसके अलावा बहुत सारी कोचिंग्स आर मेकिंग दोज करंट अफेयर्स वीडियोज एंड ऑल, और न्यूज़पेपर वीडियोस. सो आप अपने, अगर आप मेट्रो में जाते हैं तो आप अपना शेड्यूल बना सकते हैं कि हम मेट्रो के दौरान ये एक वीडियो देखेंगे, ताकि हमारे डेली के करंट अफेयर्स कवर हो जाएं सिर्फ आने जाने के दौरान ही. और घर पहुंच के आप थोड़ा सा सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं 1 या 2 घंटा, और आधा घंटा मॉक टेस्ट दे सकते हैं अपने प्रीलिम्स, या आंसर लिख सकते हैं मेंस के लिए. So if you have the will to do it, you will do it. This is my mantra. अगर आपका मन है तो आप कर लेंगे. You will find time for that. Then how to manage stress with relatives. So it happens. So बहुत सारे इश्यूज होते हैं. कई बार पेरेंट्स हम पे ट्रस्ट नहीं करते हैं कि हम सिविल सर्विसेज दे सकते हैं. कई बार हम खुद ही बिलीव नहीं करते कि हम सिविल सर्विसेज दे सकते हैं. बहुत बार ऐसा भी होता है, many time candidates have come and said कि नहीं मैम हम नहीं कर सकते, वो लोग कर सकते हैं क्योंकि मतलब वो शायद अलग मिट्टी के बने हैं. लेकिन ऐसा नहीं है. So I have found in my group I have found there were very mediocre students who actually excelled in civil services. तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आपको कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने की जरूरत है. बिल्कुल मिडिल क्लास मीडियोकर हम जैसे लोग बिल्कुल क्लियर करते हैं यूपीएससी. सो यू डोंट हैव टू थिंक कि बहुत अलग इंटेलेक्चुअल कोई कैपेबिलिटी होनी चाहिए, ऐसा नहीं है. सो इट्स वेरी फाइन इफ यू हैव दोज कैपेबिलिटीज, बट इट्स ओके इफ यू डोंट, क्योंकि आपको पढ़ाई के दौरान, तैयारी के दौरान बहुत सारी चीजें आप सीख लेंगे, और वो सीख के आप आराम से यूपीएससी क्लियर कर सकते हैं. सो डोंट गिव इन विदाउट ट्राई. रिलेटिव्स के साथ क्या होता है कि स्पेशली फॉर गर्ल्स, once you turn 23-24, they start pressurizing your parents and everybody else around you. अब इसकी शादी कब करोगे, अब इसकी शादी कब करोगे, अब मतलब so वो वाला जो शादी वाला प्रेशर है, या फिर करियर कब हमारा सेट होगा. फॉर बॉयज इट इज ये कमाना कब चालू करेगा. तो ये जो प्रेशर्स हैं, हमें इनको भी थोड़ा टैकल करना होगा, है ना. यू हैव टू बी वेरी स्टर्डी इन योर डेडिकेशन. तो अगर आपको यूपीएससी करना है तो आप छोटे मोटे प्रेशर से अगर आप दब गए, या जिसे कहना चाहिए अगर आप अपना गोल छोड़ दोगे, तो दैट विल बिकम अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर यू. तो अगर आपको यूपीएससी क्लियर करना है तो थोड़ा करेजियस तो होना पड़ेगा. सो एज अ गर्ल यू विल हैव टू से कि नहीं, पहले मैं अपना गोल अचीव करूंगी एंड देन आई विल थिंक ऑफ मैरिज और एनी अदर थिंग. इवन फॉर गर्ल्स, तो आपको अपना करियर सेट करना है. समटाइम देयर इज अ प्रेशर कि आप अपना अर्ली करियर सेट कर ले, ताकि you know it becomes a little easy for parents and others. So it's always good to have a alternate career as a plan B. Yes, this is another point which is very important. Always have a plan B for UPSC, because UPSC is very unpredictable. So when I was preparing, I had my plan B as my BDS. I had done my BDS. So I always knew कि अगर मेरा UPSC में नहीं हुआ, so I'll open my own practice. So I'll work with some dentists for a few years and then I'll open my own practice. So plan B होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास प्लान बी नहीं है और आपके 2-3 अटेम्प्ट्स हो जाते हैं, तो 2 या 3 अटेम्प्ट्स के बाद, 4 अटेम्प्ट्स के बाद इतना प्रेशर आ जाता है आपके ऊपर, आपको ऐसा लगता है यार ये सिविल सर्विसेज में हुआ नहीं, हो नहीं रहा है, और मेरे पास और कुछ अभी करने को है नहीं. और इसी बीच में बाय चांस अंडर प्रेशर आपके पेरेंट्स ने आपकी शादी कर दी, या फिर whatever happens in your life, तो आपका कुछ भी ऐसा होता है, तो सडनली आपका माइंडसेट होता है बहुत ही इंटेलेक्चुअल. आप मन ही मन में तो आईएएस आईपीएस और आईएसएलआई कुछ ना कुछ तो बन ही गए ना, ऑफिसर तो बन ही गए हैं मन में, है ना. आपने अपने आप को सोच भी लिया है वैसे.
और अगर आपका करियर कुछ और सेट नहीं होता तो इट्स अ ह्यूज प्रेशर ऑन सेल्फ इमेज. सो इट्स ऑलवेज गुड टू हैव अ प्लान बी. तो इससे आप बहुत काम तरीके से अपनी तैयारी स्टार्ट मतलब प्रिपेयर कर पाते हैं. तो वट एवर इज योर प्लान बी, थिंक अबाउट दैट कि अच्छा मेरा अगर बाई चांस नहीं होता है सिविल सर्विसेज में तो मैं ये करूंगा या करूंगी. दिस इज द सेकंड करियर ऑप्शन आई हैव. और बहुत सारे लोग ये भी बताते हैं, मतलब आई हैव हर्ड इन मोटिवेशन टॉक्स कि you should not have an alternative. There should never be a plan B. So maybe that works for you, but it didn't work for me. मतलब मेरे को तो plan B चाहिए होता है. So it's upon you. If you don't want to have a plan B and you want to be only and only dedicated towards civil services, that's very fine. But definitely then you'll have to be ready to manage the consequences. क्योंकि 100 in a one chance तो हो सकता है ना कि ना हो civil services में. It's ultimately a competition. So have your plan B ready with you. And apart from that, prelims और मेंस की इंटरव्यू प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी आप पहले करें. सो व्हाट आई हैव हर्ड, जैसे मैं बताती हूँ, देयर वाज अ कैंडिडेट एंड द फर्स्ट टाइम ही हैड टू टॉक विद मी. ही सेड, मैम मैंने एमपी का मैप खरीद लिया है. एमपी का मतलब ही वाज फ्रॉम मध्य प्रदेश. एमपी का मैप खरीद लिया है मतलब. तो ही सेड कि नहीं, इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करनी है ना, तो उसके लिए पहले मैंने एमपी का मैप खरीद लिया है. मैंने कहा तुमने प्रीलिम्स के लिए प्रिपेयर कर लिया? नहीं. मेंस के लिए? नहीं. So yeah, it's okay. Yes, interview is a very interesting part of UPSC. Yes, definitely you'll have to prepare for that. But first prepare yourself for prelims and mains, because those are the hurdles you'll have to cross before you reach for this interview part. So don't jump over to the fence before it arrives. तो पहले आप अपना यूपीएससी के लिए पहले प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी करें. And once you have cleared those hurdles, I am definitely very sure everybody will come to help you. So there are mock interviews, there are numerous classes, so you'll find mentors. So it's not a worry. तो पहले आप उस hurdle को clear कर लो जहाँ तक बहुत कम लोग बच जाते हैं. कितने लोग होते हैं इंटरव्यू प्रिपरेशन करने वाले? 3000 4000 मैक्सिमम. सो वंस जो प्रीलिम्स देने वाले कितने हैं? लाखों, है ना. बाय सम एस्टिमेट शायद 10-15 लाख लोग तो फॉर्म भरते हैं, 5-6 लाख शायद एग्जाम देते हैं, है ना. सो दिस इज द क्वांटम वी आर टॉकिंग व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट प्रीलिम्स. फिर कुछ हजार है जो मेंस तक पहुंचते हैं. फिर वो जो हजार हैं वो मेंस का एग्जाम देते हैं. हम शायद 10,000 12,000 कुछ ऐसे. फिर वो 10-12 हजार से फिर निकल के हमारे पास इंटरव्यू के लिए आते हैं 3 साढ़े 3-4 हजार लोग. फिर वो 3-4 हजार लोग इंटरव्यू देते हैं, देन गेट सिलेक्टेड इनटू दोस 800-900 पीपल who ultimately become officers. So it's very important कि आप पहले ये वाली जो hurdles है ना, जिसमें लाखों लोगों से आपको compete करना है, उसको आप eliminate कर दे, उसको पास कर ले and then come to interview. क्योंकि इंटरव्यू इंटरेस्टिंग है, पर इट्स द लास्ट स्टेप. और तब तक आपके पास बहुत नॉलेज आ जाएगी, बहुत हेल्प अराइव हो जाएगी. सो डोंट वरी अबाउट दैट. सो एनी ऑफ यू पीपल गिविंग इंटरव्यूज, you people can contact me directly, है ना. सो डोंट वरी कि इंटरव्यू के टाइम पे हम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे. यू कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली, आई हेल्प यू. बट बिफोर दैट क्लियर दोज प्रीलिम्स एंड मेंस. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए मेक अ शेड्यूल योर लाइफ. अगर आपकी लाइफ के अंदर आपको पता है कि इस टाइम पे मुझे ये काम करना है, सो इट बिकम्स वेरी इजी. जैसे आपको पता है कि शाम को मेरे को बस 2 घंटे पढ़ना है, और अगर आपने 2 घंटे पढ़ लिया, सो यू विल बी सेटिस्फाइड, है ना. उसके बाद ग्रीडी मत बनो बहुत ज्यादा कि नहीं नहीं अब तो मतलब मैं एकदम अपनी लाइफ लगा दूंगा या लगा दूंगी. बिकॉज डेफिनेटली इफ यू आर वेरी enthusiastic, very dedicated, it's good. But you have to save yourself from burnouts. What is a burnout? I have seen candidates जो कि शुरुआत के 1 साल में दे आर सो डेडिकेटेड, खाना तक भूल जाते हैं, नहाना तक भूल जाते हैं, है ना. घर पे बात करते हैं तो इतनी टेंशन में बात करते हैं कि अरे नहीं नहीं मम्मी फोन रखो, मुझे पढ़ाई करनी है. सोते नहीं है, 4 घंटे सो के उठ जाते हैं. सो देयर वाज अ फ्रेंड ऑफ माइन, वो रात को 1-2 बजे सोती थी, एंड देन शी यूज्ड टू वेक अप एट 4 and 5
एकदम घबरा के कह रहे मैं तो बहुत सो गई, शिट मैं तो 4 घंटे सो गई, और फिर उठ के फिर वो पढ़ने बैठ जाती थी। तो मतलब इट्स नॉट द लाइफस्टाइल यू कैन परस्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना। अल्टीमेटली यू विल हैव टू हैव अ हेल्दी लाइफस्टाइल। सो डोंट बर्न आउट, क्योंकि क्या होता है, 1 साल आप अपना हेक्टिक शेड्यूल फॉलो कर सकते हो, लेकिन 1 साल बाद आपको लगेगा भाड़ में जाए यूपीएससी। सो यू नो वो वाला जो फीलिंग होता है कि मतलब यू आर सो टायर्ड, यू डोंट वांट टू डू एनीथिंग, तो वैसे वाले बर्नआउट से बचें। So schedule your studies, your mock test, your test series. Make friends who are interested in this pursuit. Why? क्योंकि आपके जैसे फ्रेंड्स होते हैं, आपकी सोच भी वैसी बन जाती है ना। यू स्टार्ट एंडेवर इन दैट डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में आपके दोस्त जा रहे होते हैं। So it's good to have friends who are pursuing for civil services examination. So when you'll meet them over a cup of tea or a coffee, or maybe just for a walk, so you people will be discussing कि अच्छा आगे कैसे प्रिपेयर करना है, अच्छा कौन सी कोचिंग जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए, अच्छा ये बताओ तुमने वो डिस्कशन सुना था, वो डिबेट सुना था, वो न्यूज़पेपर पढ़ा था, क्या टॉपिक्स थे। So once you start discussing with people, it keeps the candle burning. नो वो जो आँच है या आग है वो जली रहती है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है कि पीपल स्टार्ट विद अ हाई फ्लेम फॉर प्रिपरेशन कि हम सिविल सर्विसेज देंगे, है ना, अब तो हम कलेक्टर बन के ही रहेंगे, अब हमें कोई नहीं रोक सकता। But between their daily routine, between all the distractions we have in today with Facebook, WhatsApp, Instagram, Twitter, and all those things, and in between all these distractions and outings and family functions and family, so somewhere it fizzles out. So उस टाइप की फिजलिंग से भी आपको बचना चाहिए। सो मेक फ्रेंड्स जिनके साथ आप ऐसे डिस्कशन कर सकें, है ना, एंड ऑल्सो हैव सम टाइम आउट, है ना। फैमिली को प्रिपेयर करें, फैमिली को प्रेप करना बहुत जरूरी है। सो दे मस्ट ऑल्सो अंडरस्टैंड दैट you are preparing for a competitive examination, so you will need some time in the sense कि जितनी भी ऐसी वाली एक्टिविटीज होती है, फंक्शन में जाना है, अच्छा छोटा मोटा अरे यार चलो वहाँ पे घूमने चल रहे हैं, तुम क्यों नहीं चल रहे हो, तो वो वाले जो सवाल है वो आपसे ना हो, उसके लिए कि आप घर वालों को भी प्रेप करें कि कितना डिफिकल्ट एग्जाम है ये, और किस तरीके से आप उसके लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं। अपने लिए अगर टेबल चेयर, मतलब आई से द बेस्ट थिंग यू कैन इन्वेस्ट इन इज अ टेबल चेयर। एक अलग सिक्लूडेड प्लेस पे टेबल चेयर के अंदर इन्वेस्ट करें विद अ नाइट लैम्प, सो यू डोंट डिस्टर्ब एवरीबडी एल्स इन द रूम। सो आप अपना टेबल चेयर शांति से एक जगह ढूंढे जहाँ पे आप पढ़ सकते हैं। मेंटर्स ढूंढे, मेंटर्स से क्या होता है कि दे कीप यू मोटिवेटेड। बहुत बार ऐसे ऐसे वाला मोमेंट्स आएंगे जब आपको लगेगा यार ठीक तो चल रही है लाइफ, क्या जरूरत है सिविल सर्विसेज देने की, अपनी जिंदगी इतनी खराब करने की हमें क्या जरूरत है। सो नो वी कैन एनी डे गो इन अ कॉर्पोरेट सर्विस, वी कैन डू सम एमबीए एंड ऑल, एंड अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी। सो व्हाई डू वी हैव टू स्लॉग इट। So here comes the why do we have to slog it वाले के अंदर it's very important to ask why with you। अपने आप से पूछें कि आप सिविल सर्विसेज क्यों देना चाहते हैं, and only if you get a very concrete answer, only then you pursue it। अगर आपको लगता है कि आप सिविल सर्विसेज इसलिए देना चाहते हैं क्योंकि एक बड़ा बंगला मिलता है, नौकर चाकर मिलते हैं, या यू नो ऑल दैट पावर एंड अथॉरिटी दैट कम्स विद इट, आई विल से थिंक अगेन, क्योंकि ये सब जो है बहुत minuscule part of civil services है। And think, why do you want to give this civil services, why do you want to become a government officer। so आपको अगर इस बात की क्लैरिटी नहीं है तो और आप इंट्रोस्पेक्ट करें, और जब आपके पास एक कॉन्क्रीट आंसर हो कि हाँ मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ, क्योंकि मेरा एम ही है कि मैं सर्विस करूँ, पब्लिक सर्विस के अंदर एंटर करूँ। It's okay if I have to work a little longer on a limited salary. It's okay. So if you are that kind of person, then come into civil services. इसके अलावा now this is what I had to share with you. Now you people can ask questions. Thank you so much, ma'am. There is no doubt that this was very informative and inspiring.
Ma'am, we have collected some questions from the students. We will be grateful if you could answer them for us. Beginning with the first question, what can we do in college to help us develop as UPSC candidates, or how to strengthen our CV? So you can start with joining with all these groups. Like one you have joined, Disha. Disha is one of the initiative where you can say yes, because in interview you have to write a small section wherein you write your contributions, your awards, and your participations. So इस एरिया के अंदर अगर आपके पास ये सब लिखने को है कि you joined this society of your college, you participated in eco club or literary club or all these things, so it strengthens and shows your leadership skills. So जितने भी आपके ऐसे हैं उनके अंदर आप participate करें. If you are good in sports, then participate in those district levels and all those sports activities. वो इसलिए क्योंकि इन सब एक्टिविटीज में पार्ट लेने से आपको ये सब आप मेंशन कर सकते हो अपने इंटरव्यू प्रोफाइल में. एंड दिस एवरी एस्पेक्ट यू डू, एवरी अचीवमेंट यू गेट इन योर कॉलेज will reflect the kind of person you are. So if you have been in leadership positions, तो आपको कहीं ना कहीं एक लीडर वाली क्वालिटी है आपके अंदर, ये इंटरव्यू बोर्ड को पता चलता है. सो पार्टिसिपेट इन ऑल दिस. एंड उसके अलावा आप अगर न्यूज़पेपर में लिख सकते हैं, किसी जर्नल में लिख सकते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव होती हैं, आपका प्रोफाइल इम्प्रूव होता है वाइल गिविंग इंटरव्यूज. और इसके अलावा आपको मतलब मेंस के अंदर भी बहुत हेल्प मिलती है. सो इफ यू आर अ गुड राइटर, definitely you'll get good marks in mains. And if you can join NGOs also. So if some of the people are interested in some philanthropic activity, so you people can join NGOs and do some good work. So it will accumulate good karma as well as good profile. Thank you, ma'am. Moving towards the second question, how to handle ups and downs at the start of UPSC preparation, as we sometimes wonder how we will handle such a large syllabus. I'll say start with the bits and pieces. So definitely syllabus is quite large, but it's manageable. It's definitely manageable. So what I'll say, you start with the reading the basic books. Basic books are like NCRTs, and I told you this earlier also. So there is a set book list. So those are the basic book lists. So you start reading one by one, and you also get numerous question banks. So if you are an English medium student, you get everything is available on these photostat shops in Rajendra Nagar. So if you are a Hindi medium student, every material is available in Mukherjee Nagar. So whatever medium you have, according to that, you go to that place, you will find an ocean of notes, ocean of material, and ocean of question banks, question papers. So just dive in and find whatever suits you. आप देखो आपको कौन से क्वेश्चन पेपर ठीक किसी कोचिंग के क्वेश्चन पेपर्स ठीक लग रहे हैं, या फिर सेट क्वेश्चन बैंक्स आते हैं. सो यू टेक दोज. आप थोड़े से क्वेश्चंस लगा के देखो कि आप कितना रिफ्लेक्ट कर पा रहे हो जो आपने पढ़ा. सो आपने हिस्ट्री पढ़ी, हिस्ट्री के अंदर आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ ली है ना. नाउ यू वांट टू इवैल्यूएट योरसेल्फ, सो बाय सम क्वेश्चंस. सो यू मार्क दोज क्वेश्चंस एंड सी कि आप कितना सही कर पा रहे हो, कितना गलत कर पा रहे हो. तो इस तरीके से आप मैनेज कर सकते हैं. और अप्स एंड Thank डाउन्स you, तो ma'am. डेफिनेटली हर्षिता, अप्स एंड डाउन्स तो देखो आपको अपनी व्हाट आई सेड के अपना वाई जितना आपका स्ट्रांग होता है उतना ज्यादा आपका डेडिकेशन स्ट्रांग होगा. अगर आप सिर्फ इमेज बनाने के लिए या टाइम पास के लिए यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो थोड़े समय में फिजल आउट हो जाएगा. लेकिन अगर आपके पास एक स्ट्रांग है रीजन कि आप क्यों यूपीएससी करना चाहते हैं, तो ठीक है, थोड़ा सा अप आएगा, थोड़ा सा डाउन आएगा, ऐसा भी लगेगा क्यों कर रहे हैं, हम कर सकते हैं नहीं कर सकते, मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके साथ आ सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली विल परसिस्ट थ्रू देम. Thank you, ma'am. The next question that we have is, how can we balance UPSC preparation and college if you're not taking any coaching classes? If you're not taking any coaching classes, I'll say this is the same. I already discussed that you people can buy these notes and start self study. And on YouTube, you find a plethora of content.
Now you can of course join an online class of some coaching, but it's okay. If you want to join, you join it because that gives a little more streamlined material. But if you want to prepare yourself, you don't want to spend those bucks, it's very fine. You go on YouTube, you'll find free material. So a lot of people have made videos on various subjects. तो आप वहां से थोड़ी वीडियोस देख ले, अपने आप को ओरिएंट कर ले, फिर घर आए, घर आने के बाद आप अपना जो बुक्स हैं उनको पढ़ें, क्योंकि अल्टीमेटली यू विल हैव टू रीड to reproduce. So more you read, the better content you can reproduce in your mains or in your prelims. So you read, 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 read. That's the only mantra I can give. So अब आप time कैसे निकालेंगे? That's the challenging part. So use your commutation time. Use time with your friends. So make friends with whom you can discuss. And apart from that, 2 to 3 hours at home is a good time after college that you can devote to civil services preparation. थोड़ा रात का समय निकाल ले when everybody else is asleep. So that's a very peaceful time when you can study. If some of you are early risers, get up early, sleep early, and get up early at 4 or 5, maybe then you can study. So it depends on what clock time favors you. So you choose the one which you are comfortable with and devote 2 3 hours per day. Okay, thank you, ma'am. Moving towards the next question, would you like to tell us few tips on how to develop a critical thinking approach during UPSC or CSC preparation? Uh, Regarding this critical approach, I'll say start asking questions, even if they are uncomfortable questions. So, asking whom? Of course, the internet. So, you don't go and ask your parents about these questions because they don't have answers to these questions. So, so you are reading about some crisis in Afghanistan. So, you must ask question: why is this crisis coming here? What is the history of Afghanistan? Why this conflict between different communities is there? So once you start reading, once you start searching and asking the right questions, you will find that ultimately आपकी जो knowledge base होगा वो इतना expand हो जाएगा that when you will be on a stage where you have to write answers for mains, you will have sufficient content with you. तो आप क्वेश्चंस पूछें हर टाइप, जैसे आपने कोई भी इशू जो आपके लाइफ में हो रहा है या आपकी लाइफ को छोड़िए आपकी करंट अफेयर्स में हो रहा है, जहां पर भी हो रहा है, स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस. So there is, as you must be knowing, there is an ethics paper in paper 4. So basic question, why do people get angry, is also a question for UPSC. So if you start observing people and start asking कि लोगों को गुस्सा क्यों आता है, so you will see कि insecurities की वजह से आता है, because they have unfulfilled desires, इस वजह से उन्हें गुस्सा आता है. They have high expectations from others which remain unfulfilled. तो इस तरीके से आप अपने दिमाग में भी 3 4 पॉइंट्स रीजन सोच सकते हैं. So this again is a preparation of UPSC. So nobody will think कि ये UPSC की preparation है, but ये है because there is an ethics paper. So if you are reading about farmer protest, you must be thinking कि major issues क्या हैं जो farmer को परेशान कर रहे हैं हमारे देश में. So once you have this question, go on internet and study कि क्या क्या problems हैं. Credit की problem है, productivity की problem है, उनके पास tools कम है, knowledge कम है. तो you'll start knowing कि क्या क्या issues हैं जो हमारे farmer को परेशान कर रहे हैं. So I'll say start asking questions. Now the next question that we have is, when you were a student, were you always consistent? I'm not getting your voice properly, Harshita. Uh, am I audible now? There is an echo. Okay, ma'am. Ma'am, when you were a student, were you always consistent? I think you have a dual voice coming in. So is your Bluetooth off or on? Please check. Okay, ma'am. I'll just-
हर्षिता, आप कहीं दो डिवाइस तो नहीं जुड़े हुए हो? दो डिवाइस से एक बार अपना ये हेलो, Yes, ma'am. Am I audible now? I think your two devices are on, so there is an echo. यस मैम, आई थिंक थोड़ा सा इको हो रहा है। हर्षिता, एक बार हम रिकनेक्ट कर सकती हो ब्लूटूथ से? दैट विल बी ओके फॉर यस। ये विदाउट हेडफोन एक बार आप जुड़िए, देखिए विदाउट हेडफोन या ईयरफोन। Am I audible now? इको कर रही है आपकी आवाज, पता नहीं जैसे अचानक। Okay, no problem, Harshita. I will take care from. Okay. Sorry, ma'am, for inconvenience. Ma'am, It's okay. yeah, ma'am. Our next question is for you. If we are doing any job and want to clear UPSC exam, then how to prepare for it without quit this job? So numerous candidates do that. So many toppers do that rather. When I was giving my first and second attempt, even third attempt, I was doing job with it. So I have given nearly all my attempts with my job intact. So earlier I was assisting a dental surgeon with his dental practice, and after that I joined this service. So it's not advisable rather to leave your job and prepare, because I always said, जैसे मैंने पहले भी बताया, it's good to have a plan B. तो अगर आपने जॉब आप करना चाहते हैं, आप कर रहे हैं, तो अगर आप उसे पार्ट टाइम में कन्वर्ट कर सकते हैं, इट्स बेटर. इफ यू कैन नॉट, देन टेक लीव्स देन स्टडी. और टाइम मैनेजमेंट हो जाता है. एज आई सेड, इफ यू हैव विल टू डू इट, यू विल डू इट. तो अगर आपके पास वो इच्छा शक्ति है, तो आप कहीं ना कहीं से टाइम निकाल ही लेंगे, खोज ही लेंगे. और आई हैव एग्जांपल फ्रॉम माय फ्रेंड सर्कल, निशांत जैन. So he was already working with Parliament, and during his preparation, he was continuously in job, and then he cleared it with his job intact. So definitely you can, but of course you will have to take leaves. You'll have to take leaves during your examination. There will be time when you have to uh, prepare for a month or two. So उस टाइम पे आपको छुट्टियों की जरूरत पड़ेगी. So मैनेज, यू विल हैव टू मैनेज. अगर आपको दोनों हाथ में लड्डू चाहिए, नौकरी भी चाहिए और सिविल सर्विस की प्रिपरेशन भी करनी है, सो डेफिनेटली इट विल बी अ स्ट्रेसफुल टाइम फॉर यू, लेकिन आप कर सकते हैं. इट्स नॉट इम्पॉसिबल. Oh, thank you, ma'am. Ma'am, our next question for you is there any benefit for being inspiring from non-humanities background? Is it impressive to interview board members? No, not at all. So your graduation is just an indicator that helps them to ask questions. But uh, uh, whatever graduation subject you are very you are on an equal footing with everybody else. मैंने पहले भी बताया था, it doesn't matter to interview board, it doesn't matter to UPSC. Rather हमें बहुत अच्छा लगता है अगर कोई डाइवर्स फील्ड के बच्चे हमारे पास आते हैं इंटरव्यूज के लिए. So if we get someone from law, we could get someone from political science, so it becomes a little more interesting. The interview becomes interesting. तो इसी तरीके से सोशियोलॉजी से कोई आ जाता है, फिलोसफी से कोई स्टूडेंट हो, तो it's good. So I don't think there is an advantage for engineers or any other professional course people over normal graduation students. But definitely थोड़ा सा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के प्रति ओरिएंटेशन में थोड़ा अंतर मुझे हो सकता है कि हो. जैसे कि
because people who have given engineering entrance exam, medical entrance exam, CLAT or any other GMAT, all these जो जिन्होंने entrance exam दिए होते हैं, they are better oriented towards giving MCQ papers. They are better oriented towards preparing under stressful conditions of civil services. So I think these two things are the only thing which give them a little edge. So वो तो स्मार्ट वर्क से कवर किया जा सकता है. So I don't think graduation is a big thing. Okay, thank you so much, ma'am. Ma'am, this one is my favorite question for you. Uh, Ma'am, when you was a student, was you always in a intelligent and mature student? Like, if yes, how you maintain that? And if no, what you did? Rather, I would tell you, I was not a student with 90 percentile. So I always used to hang over around like 70, 80, 80, 85. So I was more involved in extracurricular. So I used to debate in my college. I used to participate in every other damn thing in my college. So I used to. I was a editor Hindi magazine in my school. In my college, I was part of literary club. Sports, I was into sports. So all these things, I was more into extracurricular during my school and college time. I was not a very academically a bright student. I was an average, above average kind of student. I got 7 certificates of merit for my BBS, but yes, I would say it was like okay. So uh, I think academically you must be sound, but you don't have to be number one. It's very fine if you are number two, number three, number 10. It doesn't matter until till the time you are very dedicated towards civil services, you can prepare for that. Okay, thank you so much, ma'am. Ma'am, this question we get from YouTube. Like someone is asking, ma'am, I am a traditional Sanskrit student. I have no concerns about GS and basic information, and I am tired about NCRT, but sometimes I didn't understand how I do. Uh, the student is from a Sanskrit student. Yes, ma'am. A Sanskrit Okay, student. so look, NCRTs are very fine books. They are written with great insight. So so you start downloading. So you can download it free from internet. You can buy these NCRT books from some shops. So just start reading them. So don't put pressure on your mind that civil services के लिए prepare कर रहे हैं तो कुछ extraordinary information आनी चाहिए. कई बार ऐसा होता है कि when students are preparing, they are reading books, वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई होती है बुक्स से, और फिर जब वो पढ़ते हैं तो उन्हें लगता है अच्छा बस इतनी ही यही इंफॉर्मेशन क्या जरूरी है. सो डोंट थिंक लाइक दैट. सो यू रीड एनसीईआरटीज एंड आई डिडंट गेट द क्वेश्चन रादर कि एनसीईआरटीज से समझ नहीं आ रहा है या फिर समटाइम्स वी फील ना कि एनसीईआरटी काफी बोरिंग हो गई है, कितनी सारी एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ती है, तो some of students like feel कि why are we are reading this kind of books, like it's a small class book, so that kind of question I think. स्मॉल स्मॉल मतलब स्टूडेंट्स के लिए तो है ही, लेकिन उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है एनसीईआरटीज के अंदर. वो आपका बेस बना देती है. सो वंस यू आर थरो विद योर एनसीईआरटीज, यू हैव अ सॉलिड बेस. क्या होता है, हमारे एजुकेशन सिस्टम का फ्लॉ है कि जब हम स्कूल में पढ़ रहे होते हैं तो हम एनसीईआरटीज को उस माइंडसेट से नहीं पढ़ते, हम उन्हें समझते नहीं है. मोर ऑफ द कंसंट्रेशन इज ऑन क्वेश्चन एंड आंसर्स, और बहुत सारे बच्चे तो सिर्फ रट्टा मारते हैं. सो दिस इज द मेन इशू, जिसकी वजह से एनसीईआरटीज यूपीएससी की प्रिपरेशन में दोबारा पढ़नी पड़ती है. वैसे तो हमें पढ़ने की जरूरत होनी नहीं चाहिए. अगर हमने 9th या 10th में एक बार हिस्ट्री पढ़ ली है तो वो हमें याद होनी चाहिए ना. लेकिन क्या होता है कि जब हम 11th में आते हैं तो 10th भूल जाते हैं, 12th के अंदर 11th भूल जाते हैं, फिर एक बार ग्रेजुएशन करने लगते हैं तो स्कूल भूल जाते हैं. तो इसीलिए हमें दोबारा से एनसीईआरटीज पढ़नी पड़ती है टू जस्ट गेट रिविजन ऑफ आवर बेस, वो बेस फॉर्मेशन के लिए. तो आपका एक बार वो एनसीईआरटीज बोरिंग इसलिए लगती है क्योंकि हम उन्हें क्वेश्चन करके नहीं पढ़ते हैं. आप उनको ऐसे समझ के पढ़ रहे हैं कि अब यार एनसीईआरटी 6th की क्लास से हमें क्या ही नॉलेज मिल जाएगी. अब 6th के बच्चे को जो इतना पता है हम उससे ज्यादा जानते हैं.
बट वंस यू विल रीड दोज बुक्स ना, यू विल फाइंड कि इसमें बहुत इंफॉर्मेशन है। तो बहुत अटेंशन के साथ आप पढ़ें, आप क्वेश्चंस पूछ के पढ़ें। क्वेश्चंस मतलब पहले आप एक टॉपिक लें, उसको देखें और अपने आप से क्वेश्चन करें कि मुझे इस टॉपिक के बारे में कितना पता है। जैसे कि आपने साइंस की बुक उठाई, उसमें ग्रेविटेशन लिखा हुआ है टॉपिक, तो आपने ग्रेविटेशन के बारे में बड़ा बड़ा नेचुरल नॉर्मल सा टॉपिक लग रहा है ग्रेविटेशन, सो यू आस्क योरसेल्फ, आपको ग्रेविटेशन के बारे में कितना पता है, किसने बताया, क्या कॉन्सेप्ट है, क्या उसके यूजेस हैं, क्या उसके एनॉमलीज हैं, तो आपको कितना पता है उसके बारे में। अगर आपको 100% पता है तो तो बात अलग है, नहीं तो यू स्टार्ट रीडिंग अबाउट दैट ग्रेविटेशन की एनसीईआरटी में क्या क्या लिखा है। So this will keep the content interesting. Okay, thank you so much, ma'am. I think ये सभी participants को उनके क्वेश्चंस और जो उनके डाउट्स वगैरह थे वो सारे सॉर्ट आउट हो गए होंगे। स्टिल मेरे को लगता है कि एज अ यूपीएससी इंस्पिरेंट्स हमारे पास बहुत सारे डाउट्स और क्वारीज तो रहती है। जितने क्वेश्चंस पूछे उनका सॉर्ट आउट होना थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है, बट जिस तरीके से आपने अभी हमें समझाया और सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए, आई फील कि काफी हद तक सबको काफी चीजें क्लियर हो गई होगी। सो थैंक यू सो मच, मैम। Harshita, would you like to continue? Yeah, sure. Yeah. Am I audible now? Yes, absolutely. Okay. It was personally such an insightful session, ma'am. If there's anything you wish to add, you may please do it now. So I'll say, study hard, work hard. Success is at the horizon. और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती. That's a cliched line, but yes, it is very, I'll say, insightful to everybody. क्योंकि until and unless you try, you don't know what you can achieve. तो पढ़ाई करें, एग्जाम दें, शिद्दत के साथ दें, और मुझे पूरा भरोसा है कि आप क्लियर करेंगे एंड यू विल मेक योरसेल्फ प्राउड, योर पेरेंट्स प्राउड, एंड स्पेशली योर कॉलेज विल बी वेरी प्राउड ऑफ यू. So recently I went back to my alma mater, to my college for an event, and it was such a pleasurable thing to meet your seniors, your teachers again, and see how proud they are of you. So I wish that you make your college very proud of you. So wherever you go, you all should be very successful. And one more thing, be honest to yourself. So uh, before you are honest to anybody else, be honest to yourself. So आपको ईमानदारी से पता होना चाहिए कि आप ये प्रिपेयर करना चाहते हैं या नहीं चाहते, किसी के प्रेशर में तो नहीं कर रहे हैं प्रिपरेशन। अगर करना चाहते हैं तो क्या आप उसके लिए उतनी डेडिकेशन, सैक्रिफाइसेस करने के लिए रेडी हैं? इफ यस, देन go ahead. So evaluate yourself, introspect yourself, and once you are very clear regarding your goal and everything, study hard, and smart. Not just hard, but it should be smart. So study about 80-20 principle. So study how effectively you can study. So पढ़ने की एक पढ़ाई होती है, उसके बारे में जाने कि how better you can learn some learning techniques, and all these things will help you in your journey. And best wishes. Thank you, everybody. That's all from my side. Thank you so much, ma'am. With this, I would now like to invite our events coordinator, Ms. Sonali ma'am, from the Department of History. Well, just one correction. I'm Sonal, not Sonali. Nevertheless, this was a very exciting event, I must say. And thank you, ma'am, for sparing your time with these young students and sharing your ideas on how to deal with stress. In fact, आज के दौर में सबसे बड़ा सवाल है तनाव को कैसे मैनेज किया जाए, खास तौर से छात्रों में जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं. And as you all listened straight from the horse's mouth, my friends, that you need to do time management and stress management together. And the whole preparation for the exams is more about discipline and focus, but at the same time not succumbing to the stress. I would like to extend a deep sense of gratitude to our speaker for today. And on behalf of the entire Disha Civil Services Society of Shivaji College, I would once again like to extend a warm thank you. Special thanks to Professor Darshan Pandey, convener Disha Civil Services Society, who has been a constant source of encouragement for the students in organizing various events
for aspirants for civil services. My heartiest congratulations to the entire student body team for coming up with interesting ideas and interactive events for our young students. Last but not the least, I would like to extend thanks to Professor Shiv Kumar Sahdev, Principal Shivaji College, under whose patronage Disha Civil Services Society has been working tirelessly to ensure that students of Shivaji College get a level playing field in their preparation for the examinations as well as in pursuit of their dreams and goals. Thank you all once again for joining us. Thank you, ma'am. I Thank request you. everyone to turn on their cameras so that we can take a screenshot. मैं पार्टिसिपेंट्स को अलाउ नहीं कर रखा वीडियो ऑन करना, तो एक बार वो ऑन कर दो, उसके बाद ही शायद ये कर पाएंगे। सबकी वीडियोस पहले ऑन रहती तो सेशन लेने में ज्यादा मजा आता पहले। हर्षिता, आई गेस स्क्रीनशॉट ले लिया है, आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। म्यूट हो हर्षिता, प्लीज काइंडली अनम्यूट योरसेल्फ। Thank you. Guys, we have posted a feedback form in the chat section. You all are requested to fill that up. Thank you so much for joining the webinar. It was a pleasure having you here. You may leave the meeting now. Thank